हेलो दोस्तों, जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 70, आर्टिकल्स 91, 92 एंड 93। तो चलें स्टार्ट करें। ठीक है। आर्टिकल 91, power of the deputy chairman or other person to perform the duties of the office of or to act as chairman. Number 1, while the office of chairman is vacant, Number 1, while the office of chairman is vacant or during any period when the vice president is acting as or discharging the functions of president, the duties of office shall be performed by the deputy chairman, or if the office of deputy chairman is also vacant by such member of the Council of States as the president may appoint for the purpose. आर्टिकल 91 का नंबर 2, during the absence of the chairman from any sitting of the Council of States, the deputy chairman, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of the procedure of the council, or if no such a person is present, such other person as may be determined by the council shall act as chairman. Article 92, the chairman or the deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. Number 1, at any sitting of the Council of States while any resolution for the removal of the vice president from his office is under consideration, the chairman or while deputy chairman shall not thou he is present beside any the provisions of clause 2 of Article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the chairman or as the case may be the deputy chairman is absence. Number 2 यानी 92 का number 2, the chairman shall have the right to speak in the otherwise to take part in the proceedings of the Council of States while any resolution for the removal of the vice president from his office is under consideration, and the council, but the notwithstanding anything in the article 100, shall not be entitled to vote at all on such resolution or on any other matter during such proceedings. So 93, Article 93, the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People. The House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker as the case may be. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लूँ। यानी
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 91 कहता है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। नंबर 1, जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। जब ऐसी स्थिति कब होती, या तो अपने ऑफिस से अब्सेंस होते हैं, राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हुए होते हैं, या फिर जो भी कुछ होता है उसकी वजह से उनकी सीट खाली होती है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं या उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तब उपसभापति या यदि उपसभापति का भी पद रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। नंबर 2, राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या ऐसा कोई व्यक्ति जो उपस्थित नहीं है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ये बात है ना, जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने के लिए कोई संकल्प पास किया जाता है तब, या विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन ना होना, तब पीठासीन नहीं होता है। राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। सही बात है ना। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं। नंबर 2, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी। लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल। दी हाउस ऑफ पीपल क्या करेगी? यथाशक्य शीघ्र ही अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। तो ठीक है दोस्तों, कल मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 94, 95 और 96। उसमें मैं बताऊंगी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है दोस्तों, मैं संध्या मैम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस संविधान को पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल और दिमाग से मैं चाहती हूँ कि हमारी कंट्री स्वस्थ बने। जो गूंस हैं, फ्री फ्रॉम गूंस, हमारी जो कंट्री है कैसी बने? फ्री फ्रॉम गूंस। जो क्रिमिनल्स हैं उनसे हमारी कंट्री उन लोगों को, गूंस को, क्रिमिनल्स को हमारे देश से ख़त्म करे या उनमें
सुधार आए जल्दी से संविधान की वजह से, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ संविधान को, ताकि हमारे लोग संविधान को जाने और गुण लोगों को कैसे ठिकाने लगाना है, उनको कैसे समझाना है। उसके लिए तो हमारी जुडिशरी है, ये उसका काम है, क्रिमिनल्स पे कैसे लगाम लगाना। पर उसके साथ साथ हाँ, नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि भारत को स्वच्छ कैसे बनाएं, स्वच्छ और स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए हमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन किस फील्ड की? लीगल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब संविधान और कानून को हम लोग जानेंगे तो क्राइम करने वालों को भी हम समझा सकते हैं, उनके ऊपर बल प्रयोग भी कर सकते हैं, थप्पड़ आदि मारे जा सकते हैं उनको, है ना, समझाया भी जा सकता है। क्राइम्स तो घर से लेकर सोसाइटी तक फैले ही हुए होते हैं, हर तरह से, धर्म के नाम से पे, जाति के नाम से, रंग के नाम से, और लैंगिक भेदभाव, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के जो सारे जो क्राइम्स हैं वो जुड़े हुए रहते हैं समाज में। क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो कानूनों का काम होता है, उनका उद्देश्य होता है, चाहे दुनिया के संविधान देख लीजिए, उनका काम होता है समाज में क्राइम को रोकना, क्रिमिनल्स में सुधार लाना और समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ।